So let me just recapitulate this welded joints to you, that what is a welded joint. So first of all, as you might know that what is welding. Welding is a process of joining metallic parts by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure. So this is a welding. Now, types of welded joints. So in welded joints, you will be having two type of joints. First, I can say we have a butt joint and second we have a fillet joint. Fillet joint is also called as lap joint. So what is a butt joint? So as you know that if you would like to join two metallic parts together, so the plane of those two metallic parts will be lying on the same plane. So that is called as a butt joint. So it means that you are joining two plates just like this, as you can see, that both the planes will be on the same plane. And fillet joint, as you know that with the name itself, you can visualize that lap when one plate is overlapping with the another plate and you are joining those plates with the help of welding. So that particular joint is called as lap joint. So lap joint is also of two types. One is called as transverse fillet weld. And the second one is called as parallel fillet weld. Parallel fillet weld is also called as longitudinal fillet weld. Both are the same thing. Let me just explain you this transverse fillet weld and parallel fillet weld. वैसे ऑलरेडी हमने क्लास में ये कर लिया है, बट मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा. Depending upon the direction of the force applied, we can differentiate between the transverse fillet weld and parallel fillet weld. If the direction of force that you are applying on a plate is perpendicular to the direction of weld, मतलब जिस तरफ आपने वेल्ड किया है अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, then that particular joint is called as transverse fillet weld. On the other hand, if you are applying a force in parallel direction or along the direction of weld, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, then that particular joint is called as parallel fillet weld. Okay, ये मैं आपको with the help of figures बताता हूँ in the next slide. This is your butt joint. So this is plate number 1, as you can see, plate number 1, and this is plate number 2. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि plane of both the plates lying approximately in the same plane. Okay, and now we are going to join these two plates with the help of welding. तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में, this is the filler material, that is the welded joint between the two plates 1 and 2. And there are different types of butt joint. ये particular square butt joint है, and उसके बाद हमारे पास V joint बनता है depending upon the shape. Okay, हमारे पास ये U shape बनता है, इसको हम U butt joint बोल देते हैं. This is double V shape, एक V shape बनती है हमारे पास in both the directions. उसके बाद हमारे पास V joints with backing strip. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, this is called as your backing strip. So there are different types of butt joints, but हमें सिर्फ ये जानना है कि butt joint होता क्या बेसिकली. दो प्लेट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है जो आपका क्या है, जिनका प्लेन बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इन द सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, और इस तरह से आपने उसके ऊपर वेल्ड करना है. नाउ सेकंड वी हैव फिलेट वेल्ड, जो आपको ये दिख रहा है फिगर 8.2. दिस इज फिलेट जॉइंट. नाउ सी, this is the front view and this is the top view. Now in the top view you can clearly see this is the welding, and
Direction P is the direction of force that we are applying on the plate, and you can clearly see from here that, see, this is the direction of the, this is the direction of the weld, okay, or this. Now force that we are applying is perpendicular. Force that we are applying is perpendicular to the direction of weld. So this is called as transverse fillet weld. Okay. This particular diagram is also showing the transverse fillet weld, but the difference is that it is double transverse fillet weld. Now यहाँ पे ऊपर वाले फिगर में जो वेल्ड था आपका वो एक ही जगह पे किया हुआ था, लेकिन अगर आप दोनों तरफ बोथ साइड अगर आप वेल्ड कर देते हो, जैसे यहाँ भी कर दिया, यहाँ तो ऑलरेडी था पहले से ही, सो यहाँ भी एक तरह ये आपको दिख नहीं रहा है टॉप व्यू से, ठीक है। इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम द टॉप व्यू, फ्रॉम द टॉप साइड, यू कांट सी दिस पर्टिकुलर वेल्ड। सो इसको दिखाने के लिए ये इस तरह से आप दिखा सकते हो, एंड दिस इज योर नाउ डबल transverse fillet weld. Why? Because the direction of force is perpendicular to the weld. And this particular C figure denotes the double parallel fillet weld. Now see, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, this is showing your transverse fillet weld. As I told you that there are two types of fillet weld. There are two types of fillet weld. One is transverse fillet weld, and second one is parallel fillet weld. Now see, parallel, how parallel? Now this is the direction of the weld. आप ये देख सकते हो, ये आपने वेल्डिंग करा हुआ है, दो प्लेट्स को आपने आपस में ज्वाइन किया, फिलेट बाय फिलेट, because one plate is overlapping on the another plate. This is first plate and this is your second plate. The first plate is overlapping over the other plate. Now this is the direction of the weld, and force that we are applying, is parallel to the direction of weld. That's why it is called as parallel fillet weld, or you can also call it as longitudinal fillet weld. Okay, longitudinal fillet weld. So I hope it is clear to you now, types of fillet welds or types of different welds. Now see, जब हमने डिजाइन करना है बेसिकली किसी भी वेल्डेड जॉइंट्स को, तो स्ट्रेंथ इक्वेशंस हमने डेवलप करनी है। नाउ स्ट्रेंथ किसी भी जॉइंट की वो होती है कि whatever the force that we are applying on any joint, if that particular joint is withstanding that particular force, it means our joint is not going to fail. On the other hand, if what the force that we are applying on any joint, if the joint is not withstanding that force, it means the joint is definitely going to fail. So the amount of force that we are applying is also called as the strength of that particular joint. Okay, so अब हम स्ट्रेंथ इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं, जैसे बट वेल्ड इन टेंशन. सो दिस इज बट वेल्ड, एज यू कैन सी. Okay, this is plate number 1, as you can see. This is plate number 1. This is plate number 2. हमने दोनों प्लेट्स को आपस में ज्वाइन किया है और बीच में आपको ये दिख रहा है वेल्ड. यहाँ पे डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, ये एक तो स्मॉल एल दिखा रहा है, विच इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड, एंड दिस इज एच. एच को हम बात करते हैं थ्रोट ऑफ द बट वेल्ड. टेक्निकली इसको बोलते हैं थ्रोट ऑफ द बट वेल्ड, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट. जी देखिए, ये जो प्लेट की जो थिकनेस होगी, इसी के बराबर होता है ये एच में. सो एच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट. अब अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ निकालना, इट मींस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पी. सो हाउ वी विल कैलकुलेट पी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो दैट द टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लेट्स, सो टेंसाइल स्ट्रेस विल डेवलप. So sigma T will be equal to force divided by area. Okay, so area of the weld निकालना हमने, area of the weld, because we are going to calculate the butt weld in tension, strength of the butt weld in tension. So now इसको अगर हम आगे elaborate करें तो sigma T will be equal to P divided by area of the weld. अब इसका area निकालिए आप. If the weld is going to fail in tensile force, so इसमें जो इसका एरिया बनेगा, तो दैट विल बी H into L. So H into L will be the area of the weld if it is going to fail. Now we are interested to calculate P, because P is the strength of this butt weld. So P will be equal to, from here, that is H
into L into sigma T, and P will be equal to from here, that is T into L into sigma T. Why? Because as you know that H will be equal to T. So we can replace this H with T, and this is the strength of the butt weld. This is the strength of the butt weld. Now, समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें एफिशिएंसी भी निकालना होता है कि एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉइंट निकालो, तो उसमें हम अपने फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट इज टी इंटू एल इंटू सिग्मा टी इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर जॉइंट की, दैट इज पी डिवाइडेड बाय टी इंटू एल इंटू सिग्मा टी। ओके, तो फ्रॉम हेयर यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द बट जॉइंट। So ये इक्वेशन याद रखिएगा, बिकॉज दिस इक्वेशन वी विल यूज इन आवर क्वेश्चंस। आफ्टर दैट अगर हम बात करें स्ट्रेंथ इक्वेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर पैरेलल फिलेट वेल्ड, सो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से स्ट्रेंथ निकालनी है आपने, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पी। पी इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी जॉइंट इन वेल्डिंग। सो ये हो गया हमारे पास पैरेलल फिलेट वेल्ड। व्हाई? बिकॉज द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड। ये डायरेक्शन ऑफ वेल्ड देख लीजिए आप, और उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो पी। सो अब देखिए यहाँ पे अगर फेलियर होता है इस पर्टिकुलर जॉइंट में, दैट इज अ शियर फेलियर। ओके, सो यहाँ पे जो टर्म्स यहाँ पे देखिए, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर सेक्शन इज शोन ओवर हियर, और ये एच दिखाया गया है, दिस फ्रॉम दिस टू दिस, ये एच दिखाया गया है, एंड एच इज द लेग ऑफ द वेल्ड, पी इज द टेंसाइल फोर्स ऑन द प्लेट इन न्यूटन, एंड एच इज ऑल्सो इन mm, लेंथ ऑफ द वेल्ड इज एल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इट इज एल, एंड टाउ इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द वेल्ड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अगर आपको यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो जो फेलियर अकर हो रहा है वो शियर फेलियर हो रहा है इसमें, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द वेल्ड। सो यू हैव टू कैलकुलेट परमिसिबल शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वेल्ड। और एरिया हम हमेशा वो लिखते हैं जो वीकेस्ट एरिया होता है, जो सबसे मिनिमम एरिया होता है जहाँ से टूट सकता है हमारा कोई भी जॉइंट। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है अप टू हेयर, और या यहाँ तक ले लो आप फ्रॉम हेयर, और अगर आप 45 डिग्री पे अगर एक लाइन बनाए यहाँ पे, सो दिस इज द मिनिमम लेंथ एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। सो डेफिनेटली अवर जॉइंट इज गोइंग टू फेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। और ये विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये बेसिकली विद रिजल्ट्स हमारे पास ये प्रूव किया गया है कि 45 डिग्री पे जो है वो मिनिमम एरिया रहता है, और वहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी जॉइंट के फेल होने के इन शियर इन केस ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो ये एच का एक कंपोनेंट है, अगर इस थीटा मान लो मैं, इफ दिस इज थीटा फ्रॉम हेयर, so there are two components of h now here, one is this perpendicular component and one is this component, ठीक है ना। अगर if this is h तो एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। सो ये बन जाएगा हमारे पास h sin थीटा, और ये बन जाएगा h cos थीटा। ओके, h cos थीटा इज द मिनिमम लेंथ, वी कैन से h cos थीटा इज द मिनिमम लेंथ जिसके जहां से फेलियर अकर हो रहा है हमारा। So now we are going to calculate area. So area हमारा क्या बनेगा, that is P divided by this particular h cos theta. Okay, h cos theta into L. वैसे हम क्या कर रहे थे, h into L। अब हम क्या करेंगे, अब मिनिमम कहाँ से कहाँ फेलियर हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। So this is h cos theta and this is L and L. So theta की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, it will be P divided by h cos 45 degree into L. So tau from here will be T divided by cos 45 degree, when you will calculate it will be 0.707. So it will be 0.707 into h into L. So we are interested to calculate P because हमें strength equation चाहिए. So P will be from here, that is P is equal to 0.707 h into L into tau. Now
P is coming this particular. ये हमारा स्ट्रेंथ इक्वेशन आ गया फॉर द पैरेलल फिलेट वेल्ड इन shear. बट ये है इन इफ द वेल्ड इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना. अगर वेल्ड आपका दोनों डायरेक्शन में हो गया, मान लो जैसे ये आपका फिगर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है. ये फिगर तो हमारा हो गया बिकॉज यहाँ ये डायरेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड है एंड फोर्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है. अभी इसी की बात करते हैं. तो अभी हमने फॉर पैरेलल फिलेट वेल्ड if the weld is in the single side then P is equal to 0.707 H into L into tau. तो ये इसको लिख देता हूँ मैं फॉर सिंगल. नाउ फॉर डबल, अगर दोनों तरफ वेल्ड है तो हमें क्या करना है, P विल बी इक्वल टू ट्वाइस कर देना है आपने, क्योंकि 0.707 H into L into tau दूसरी तरफ भी वही आएगा. तो मैं इसको सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय this particular value 0.707 H into L into tau कर सकता हूँ मैं आराम से, and it will be now P is equal to 1.414 H into L into tau. इस इक्वेशन को याद रखिएगा. दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में. दैट हाउ यू नो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ फॉर अ पैरेलल फिलेट वेल्ड if the weld is in both the directions. This is for double parallel fillet weld, you can say. This is for double parallel fillet weld. Now ये जो हमारे पास ये डायग्राम बना है, ये कौन सा है? दिस इज ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. ओके, ये था हमारे पास पैरेलल फिलेट वेल्ड और ये है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. दिस इज योर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. अब इसकी अगर आपको स्ट्रेंथ निकालने तो कैसे निकालोगे आप? ट्रांसवर्स कैसे है ये कैसे पता लगा? बिकॉज सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं. सो अगर समहाउ अगर इसमें फेलियर होता है तो इसमें टेंसाइल फेलियर होगा हमारे पास. रिमेंबर दिस थिंग. सो बोथ, अब देखिए इसमें भी जो फेलियर अकर होगा वो मिनिमम एरिया पे होगा लाइक दिस, और वही 45 डिग्री पे हम अगर माने तो सेम इक्वेशंस बनेंगी. आप दोबारा से आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो आई एम राइटिंग द इक्वेशंस फॉर strength equation for transverse fillet weld, that is P is equal to 0.707 H into L into sigma T. अब यहाँ पे सिर्फ sigma T आएगा बिकॉज यहाँ पे टेंसाइल फेलियर होगा. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होगा टेंसाइल फेलियर when the direction of force is perpendicular to the direction of weld, और यहाँ पे होगा shear failure when the direction of force is parallel to the weld, that is going to fail in shear. So ये equation for single weld है and P is equal to that is sorry ओके. फॉर डबल ये इक्वेशन बन जाएगी फिर से. इट इज 1.414 H into L into sigma T. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. ये जो रिलेशंस हमने निकाले हैं, दिस इज फॉर डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. ठीक है ना, ऊपर वाला फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, नीचे वाला फॉर डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. तो यही इक्वेशंस हैं जो हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काइंडली नोट ऑल दीज इक्वेशंस. पेपर में डेरिवेशंस तो नहीं आएगा, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस आई कैसे हैं, किस तरह से बनी है. ओके, सो लेट मी नाउ जस्ट सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वैसे करा चुका हूँ क्लास में. लेट मी जस्ट once again solve this for you. A steel plate 100 mm wide and 10 mm thick is welded to another steel plate by means of double parallel fillet weld. Okay, as shown in figure 8.9. फिगर दे रखी है आपको. देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड और फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ वेल्ड के पैरेलल डायरेक्शन में. तो डेफिनेटली पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये तो पता लग गया हमें. अगर गिवन ना भी होता, सिर्फ फिगर देख के आपको पता लग जाता. डबल लिख रहा है ये, इसका मतलब दोनों तरफ वेल्ड कर रखा है और दिख भी रहा है फिगर में. ओके,
द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू स्टैटिक टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन. इट मींस P दे रखा है हमारे पास टेंसाइल फोर्स which is 50 किलो न्यूटन, and determine the required length of the weld if the permissible shear stress in the weld is 94 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टाउ दे रखा है हमारे पास, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल फिलेट वेल्ड है, अगर डायरेक्शन ऑफ वेल्ड के अलोंग आप फोर्स लगा रहे हो तो shear फेलियर होगा. तो ऑलरेडी आपके पास परमिसिबल shear स्ट्रेस दिया हुआ है. हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट मी जस्ट solve this question for you. So first of all, write the given conditions. What are the given conditions that we have? We have width, that is W, 100 mm. We have thickness, that is T, 10 mm. And then force P is given to us 50 kilonewton, which you can write also 50,000 Newton. 50,000 Newton. 50,000 Newton. After that, tau, permissible shear stress is also given to us, tau, which is 94 Newton per mm square. Now you know कि हमें length of weld निकालना है. हमसे ये पूछा गया determine the required length of weld. कैसे निकालेंगे? As you know, what equation we will use now? Directly अब P is equal to double parallel fillet weld है, तो it will be 1.414. okay, ये देखिए 1.414, ये इक्वेशन यूज करोगे आप 1.414 h into L into tau for double parallel fillet weld. ठीक है, so let me erase this. So 1.414 h into L into tau. Now P is given to us, which is, अब आप इसमें अगर वैल्यूज भरो 50,000 न्यूटन will be equal to 1.414 into h. h देखिए h जो होता है हमारे पास length of weld which is thickness of plate के बराबर होता है, तो h is equal to T आप ले सकते हो. सो ये 10 mm ले लो आप यहाँ से ऊपर से, इनटू L आपको निकालना है और tau हमारे पास दे रखा है. सो देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन ऊपर, न्यूटन पर mm स्क्वायर. ऑल द यूनिट्स आर इन न्यूटन mm नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ये हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया 50 किलो न्यूटन को इन न्यूटन. नाउ ऑलरेडी अननोन इज L, लेंथ ऑफ वेल्ड. यहाँ से L निकाल दीजिए, L विल बी इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 10 इंटू 94, और जब इसको आप सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 37.62 mm, और ये निकालना था हमने. ठीक है, तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन करना. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप पहले आप फिगर देख लीजिए. ये इस फिगर में हमारे पास दोनों तरफ वेल्ड कर रखा है. डायरेक्शन ऑफ वेल्ड देख लीजिए. अगर ये साइड व्यू और टॉप व्यू से आपको ये दिख रहा है, तो फोर्स आपकी इस तरफ लग रखी है, बाहर की तरफ. दिस इज P और ये भी P लग रहा है हमारे पास. तो हमारे पास आप देखिए फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ वेल्ड है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड. अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ वेल्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है, इट मींस इट इज ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. ठीक है ना, फिलेट क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर रहा है एक प्लेट दूसरी प्लेट पे, एंड दोनों तरफ का रखा है. दिस इज डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू स्टील प्लेट्स 120 mm वाइड विड्थ दे रखी है एंड 12.5 mm थिक आर जॉइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. देखिए हमने पहले देख लिया फिगर में कि कौन सा जॉइंट है ये. As shown in the figure, the maximum tensile stress for the plate and the welding material should not exceed 110 Newton per mm square. Okay, so इसमें भी इन्होंने पूछा हुआ है find the length of the weld if the strength of weld is equal to strength of plate. ये कंडीशन दे रखी है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. In order to solve this question, हम फिर से वही करेंगे. ओके, गिवन कंडीशंस आप देख लीजिए. हमारे पास एक तो विड्थ दे रखी है विच इज 120 mm. आपको थिकनेस दे रखी है प्लेट की 12.5 mm, एंड
मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेट, सिग्मा टी दे रखा हमारे पास 110 न्यूटन पर mm square. Find the required length of the weld. Okay, required length of the weld if इन्होंने बोला हुआ है strength of weld, if strength of weld is equal to strength of the plate. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसी कंडीशन का यूज करते हुए आप लेंथ निकाल सकते हो वेल्ड का। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की इक्वेशन आपको पता ही है, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड बन गया, और फेलियर कौन सा होता है इसमें? टेंसाइल फेलियर होता है। तो 1.414 H इंटू L इंटू सिग्मा टी, ये हो गया, विच विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अगर मैं यहाँ पे आपको निकाल दूं कि प्लेट के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, उससे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा प्लेट में, एंड फोर्स पी अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट क्या आ जाएगा? विड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है ना। और इससे आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज पी, पी इज द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बन जाएगा यहाँ से W इंटू टी इंटू सिग्मा टी, है ना। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको यहाँ लिख देंगे। अब दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Okay, so it is W into T into sigma T, है ना। अब what are the given conditions that we have? 1.414 into H is equal to T, which is 12.5 into L हमें निकालना है, into sigma T is given 110, which will be equal to okay P, ठीक है। width of the plate is 120 into T 12.5 into sigma T 1110. Now there is only one unknown which we have right now, which is L इन दोनों इक्वेशन से, और वहां से L हमारे पास निकल जाएगा, that is 120 into 12.5 into 110 divided by 1.414 into 12.5 into 110। तो काफी सारी चीजें जो यहाँ से कट हो गई। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ वेल्ड मिल जाएगा आपको, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेंथ ऑफ वेल्ड इज कमिंग 84.87, ठीक है, 84.87। दिस विल बी योर आंसर। सो हाउ इजी इज दिस क्वेश्चन नाउ? अगर आपको एक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि किस तरह से करना है हमने। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसका, कि इसमें भी हमें लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप देखिए, आप इसमें कुछ इस तरह से वेल्ड किया गया है कि आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हो इस तरफ और इस तरफ, तो ये है डायरेक्शन ऑफ वेल्ड, एक ये है, दूसरा ये है, और एक ये है। तो एक तो देखिए, आपने इस वेल्ड की बात करो मैं, तो ये सिंगल है, इस तरफ नहीं है ये, तो ये कौन सा वेल्ड बनेगा आपका? कौन सा वेल्डेड जॉइंट बनेगा? दिस विल बी ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, और सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होगा क्योंकि एक ही तरफ है, और ये हैं दोनों पैरेलल फिलेट वेल्ड, तो दोनों तरफ हैं, दैट इज डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर जॉइंट में सिंगल ट्रांसवर्स है, सिंगल ट्रांसवर्स है, पहली बात ये है। इसकी स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं सपोज P1, और दूसरा इसमें है डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड, इसकी स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं P2। अब इसने बोला हुआ कि प्लेट 75 mm वाइड, वंस अगेन अगर हम इसको सॉल्यूशन करें, विड्थ दे रखी है हमारे पास 75 mm, थिकनेस दे रखी है 10 mm, and they are joined with one another plate, steel plate, by means of single transverse and double parallel fillet weld। given भी है, हमने वैसे भी निकाल दिया फिगर देख के। the joint is subjected to a maximum tensile force of 50 kN, तो सिग्मा टी दे रखा हमारे पास। अच्छा, the joint is subjected to a maximum tensile force, this is force, so ये P दे रखा हमारे पास,
55 किलो न्यूटन, सिग्मा टी नहीं पी दे रखा हमारे पास 55 किलो न्यूटन एंड वी कैन राइट दिस 55,000 न्यूटन। ठीक है जी, आगे बढ़िए। द परमिसिबल टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड मटेरियल इज 70 एंड 50। तो सिग्मा टी दे रखा हमारे पास 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है परमिसिबल शियर स्ट्रेस 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोनों क्यों दे रखे हैं? बिकॉज आपको पता ही है कि जो पैरेलल फिलेट वेल्ड है उसमें शियर फेलियर आएगा, और ट्रांसवर्स में कौन सा फेलियर आएगा? टेंसाइल फेलियर आएगा। सो और ये एक हिंट हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में दैट द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स ऑफ 55 किलो न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स जो इस जॉइंट के ऊपर लग रही है वो 55 किलो न्यूटन लग रही है। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट होगा वो कितना होगा? वो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 के बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्सिमम दे रखा हमारे पास कि जो जॉइंट है दैट जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स ऑफ 55 किलो न्यूटन। दैट इज द स्ट्रेंथ इज नाउ, देखिए इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बनेगी हमारे पास जॉइंट की P1 और P2 की, तो वो क्या होगा? P के बराबर होगा। तो इसमें अब आप P1 देखिए, आप P1 निकालना होगा अगर आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। सो P1 विल बी दैट इज सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, क्या बनेगा? 0.707 H इंटू L इंटू ट्रांसवर्स है तो इसमें फेलियर सिग्मा टी आ जाएगा, एंड P1 फ्रॉम हेयर विल बी 0.707 H हमारे पास विच इज इक्वल टू T थिकनेस, सो आप निकाल सकते हो यहाँ से विच इज 10 इंटू L निकालना है हमने, इंटू सिग्मा टी आप ऊपर से ले लीजिए 70। ठीक है ना? तो ये आ गया P1 एंड P2 निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड, इट इज 1.414 H इंटू L इंटू टॉ। कितना सिंपल है। सो इट विल बी 1.414 H फिर से 10 विच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू L इंटू टॉ, हमारे पास आ गया 70। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे P1 को, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि P what will be the value of P1 when you are solving this. It is 37,117. 37,117.5 okay. अच्छा, लेंथ ऑफ वेल्ड इज आल्सो गिवन टू अस 75। किस केस में? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में लेंथ ऑफ वेल्ड तो गिवन है L, तो इसको आप L को क्या लिख सकते हो? 75 है ना? सो द वैल्यू इज 37,117.5 न्यूटन, ये तो वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको इसमें हमें L ही रखना है बिकॉज इसमें L हमें निकालना पड़ेगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसको जो आप सॉल्व करोगे इट इज कमिंग 707 इंटू L, 707 इंटू L, और इसको आप न्यूटन लिख सकते हो। अब फ्रॉम वन अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ P इज इक्वल टू, P कितना हमारे पास? मैक्सिमम 55, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 55,000 विल बी इक्वल टू 55,000 विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को सम कर लीजिए, 37,115 पॉइंट, सॉरी गलत हो रहा है, वन सेकेंड ओके, 37,117.5 प्लस 707 इंटू L, ठीक है ना? ये भी लेफ्ट हैंड साइड न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, देयर इज ओनली वन अननोन विच इज L, और जब इसको आप सॉल्व करोगे योर लेंथ ऑफ वेल्ड इज कमिंग 25.29 mm, ठीक है? सो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिकॉज देयर इज ओनली वन अननोन। यहाँ पे आप इसको 55,000 माइनस इस तरफ ले आ सकते हो, फिर L इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 707 एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज लेंथ ऑफ वेल्ड
तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करोगे when you are going to design your welded joints. Okay, so I hope it is clear to you very well. If you have any doubt, then you can ask me. Okay, so thank you so much. Next lecture I will share with you with design of riveted joints. Thank you so much.